عام طور پر معلوماتی تجزیاتی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، انداز زیادہ موضوعاتی تحقیقی حقائق پر مبنی ہوتا ہے، جیسے ماحولیاتی آلودگی، تعلیم کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نئی کلاس، جس میں ہم پڑھیں گے انشائیہ کے بارے میں، اور انشائیہ کے بارے میں پورے آپریشن کے ساتھ۔ اور یہ انشائیہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں جو ہے ہر ایگزام میں اس سے سوالات بنتے ہیں اور اس سے سوالات رہتے ہیں، اور اس میں ادھکتر بچے جو ہے غلط کر کے آ جاتے ہیں اور اپنا سر پیڑتے ہیں بعد میں۔ تو یہ چاہے مقابلہ ذاتی امتحانات ہو یا پھر جو میٹرک انٹر میٹرک کے بچے ہیں یا 9th میں جو پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہے۔ باقی مقابلہ ذاتی امتحانات کے لیے یہ زیادہ کارگر ثابت ہوں گے۔ اس میں جو ہم سارا چیز ایک ایک کر کے بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور اس انشائیہ کے متعلق جو اس میں انشائیہ دیا گیا ہے اس کو بھی ہم پڑھ کر کے اور اس کا ہائی لائٹ کریں گے، پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے۔ تو آپ اس کلاس کو جو بہت ہی نالجبل اور ہر امتحان میں سوالات پوچھے جائیں گے، اس لحاظ سے، اس پرپس سے اس کلاس کو کیجئے اور فائدہ حاصل کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل ماسٹر رمیز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے، کلاس کو اینڈ تک دیکھیے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سب مین پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر انشائیہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انشائیہ ہے کہ انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے۔ کیا ہے؟ جدید کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، جدید صنف ہے۔ ابتدا میں ہلکے پھلکے مضامین کو انشائیہ کے زمرے میں رکھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ انشائیہ کے خد و خال صنف کے طور پر طے ہوتے چلے گئے۔ اردو میں انشائیہ کی تاریخ صرف 35 سال پرانی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بھائی اردو میں انشائیہ کی تاریخ کتنے برسوں کی ہے، کتنے سالوں کی ہے، تب آپ 35 سال پرانی بتائیں گے۔ مشہور ناقد اور انشائیہ نگار ڈاکٹر جانسن کے الفاظ میں ہے کہ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے جس میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اردو، یعنی یہ کوٹیشن آپ کو دے دیا جائے گا اور کہے گا کہ بھائی یہ کن کا لکھا ہوا ہے، یہ کوٹیشن کن کا ہے۔ ہاں، تو آپ جب تک انشائیہ پڑھیں گے نہیں، انشائیہ جو مضمون ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈاکٹر جانسن کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں انشائیہ کا ظہور مغربی ادبیات کے حوالے سے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو انشائیے نے مغرب کے انشائیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دائرہ کار میں بھی کافی وسعت پیدا کی ہے، کہ ہے تو صحیح یہ مغرب کے، لیکن اردو کے جو انشائیہ نگار تھے انہوں نے کیا کہ مغربی انشائیوں کو پیروی کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس کے دائرہ کار کو کافی وسعت پیدا کی۔ مثلا یہ کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ انشائیہ میں کہانویت کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو انشائیہ عصری شعور کی ترجمانی کرنے
کے علاوہ کائناتی شعر کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ زمان و مکان سوالات انشائیہ میں جگہ پانے لگے جو دینی بلوغیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ تو تھا انسائیہ مضمون کے بارے میں کہ انسائیہ کیا چیز ہے، کہ یہ جو ہے انسائیہ مغرب کا دین ہے، لیکن یہاں کے اردو میں انسائیہ لکھنے والے نے کیا کہ مغرب کا پیروی کرتے ہوئے اس کے دائرے میں کافی وسیع کیا۔ ہاں، تو یہ 35 سال پرانا ہے، تو اس میں کئی ساری باتیں آئی تھی، آپ اس کو ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کہ اب ہے سید محمود حسن، سید محمد حسنین، کہا کہ سید محمد حسنین 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب خاندہ امام تاج فقیہ، امام تاج فقیہ سے ملتا ہے۔ راجا رام موہن رائے سیکرٹری اسکول سے میٹرک اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 میں ایم.اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ 1956 میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے کا حاصل کیا۔ یعنی کہ بہار، یہ سید محمد، یہاں سے ایک سوال نکل سکتا ہے کہ سید محمد حسنین نے 1956 میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی ڈگری لینے کا امتیاز حاصل کیا۔ 1968 عیسوی سے 1985 تک ملک یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ کے حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران کثرت سے علمی و ادبی مقالات ہند پاک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے، مگر جس کام نے انہیں شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ صنف انشائیہ نگاری کے سلسلے میں لکھی گئی ان کی کتاب ہے۔ یعنی کہ ان کو سید محمد حسنین کو جو ہے جو مقبولیت ملی، جو شہرت ملا، وہ کہاں سے ملا؟ انشائیہ نگاری سے، یعنی کہ وہ انشائیہ نگار سے ہی مقبول اور شہرت یافتہ ہوئے۔ یہ کتاب ہے صنف انشائیہ اور چند انشائیہ۔ ہاں، جو یہ کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے کہ نام ہے اس کا صنف انشائیہ اور چند انشائیہ، اس کتاب کا نام ہے نا، اس کتاب کا نام ہے صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے پہلی بار 1958 دے دیا جائے گا کہ ان کی پہلی تصنیف انشائیہ کی تصنیف صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کب یہ شائع ہوا، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھائی کب شائع ہوا۔ تو میں شائع ہوئی اور اس کا چھٹا ترمیم شدہ ایڈیشن انشائیہ کے زیر عنوان 1997 میں منظر عام پر آیا۔ اس کا چھٹا ترمیم کیا ہوا تو 1997 میں آیا۔ اس کتاب میں محمد حسنین آزاد سے لے کر کے شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب جو ترمیم شدہ 1997 میں آئی، یہ کتاب میں کیا ہے؟ شفیقہ فرحت سے لے کر کے محمد حسنین آزاد سے لے کر کے شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہیں۔ ایک مضمون حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود سید محمد حسنین کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ خود سید محمد حسنین کا بھی ہے۔ وہ ابتدا میں اسی نام سے مضامین لکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک بات یہ آئی کہ جو ہے سید محمد حسنین، ہاں،
क्या कि हा मीम असलम अजीम आबादी के नाम से खुद सैयद मोहम्मद हसनैन का भी है। वो इब्तिदा में इसी नाम से मजामीन लिखा करते थे। इस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी है, कुछ मुफीद खास नंबर निकाले हैं। हसनैन साहब मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे थे, मगर अपने बेटों या बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते थे। दिल्ली और कराची में इसके बेटा और बेटी मुकीम थे, आते रहते थे। अक्टूबर 1999 पाकिस्तान गए थे, वहीं इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में मदफून है। 1999 में इनका इंतकाल हो जाता है। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए थे, वहीं इंतकाल हो गया। 1999 में जो पाकिस्तान गए ये वहीं वो इंतकाल हो गए और उनका दफन और उनका मदफून वो जो मदफून है इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखे और तनकीदी मजामीन भी लिखे। दूसरा सवाल हम किया है कि भाई महमूद हसनैन ने क्या और क्या लिखे, तो खाके भी लिखे और तनकीदी मजामीन भी लिखे। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मशाम, याद रखिए मशाम, एक रिसाला मशाम के नाम से निकाला था, जिसकी रिसर्च के एतबार से काफी अहमियत थी, रिसर्च के एतबार से काफी अहमियत थी। मगर उर्दू में लाइट ऐसे इंशाइया के नाम से मुतारिफ कराने का अहम काम ही इन्हें जिंदा रखने के लिए काफी है, ताकि उर्दू में जो है लाइट ऐसे इंशाइया का जो मुतारिफ कराया वो कराने में ही इनका अहम रोल है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इंशाइया के तर्ज पर अफसाना मकाला या ज़रीफाना मजमून से मुख्तलिफ है। उनके यहाँ मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत मिलते हैं, मगर अंदाज़े बयां में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में एक इंशाइया निगार की हैसियत से वह मारूफ और मकबूल रहे हैं। उनके ज़रीफाना मज़ामीन का मजमुआ निशात खातिर में बहुत मकबूल है। उनके उर्दू में वो मारूफ और मकबूल है। उनके ज़रीफाना मज़ामीन, कौन सा मज़ामीन? ज़रीफाना मज़ामीन, जो निशात खातिर के नाम से बहुत मकबूल है। ज़रीफाना मज़ामीन का नाम उनका निशात खातिर है। चलते हैं अब उसका ही एक लिखा हुआ मोहम्मद हसनैन का ही लिखा हुआ इंशाइया जिसका नाम हीरो है। हीरो, ये यहां से सवाल पूछे जाते हैं। महमूद हुसैन का जो हसनैन का जो है, अभी आप जो है बायोडाटा देखिए, वहां से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इंशाइया जो पहले बताया गया था वहां से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। हम इंशाइया इंड तक देखिए, हम इंशाइया और मजमून में जो है बुनियादी फर्क के बारे में भी बताएंगे। तो कहा है कि मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। यहां से एक सवाल ये बनती है कि भाई मिर्जा गालिब को क्या पसंद था? तो मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। आप न वाकिफ होंगे, अच्छे आम की तारीफ उन्होंने यूं की थी कि बहुत से हों। ये सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने यूं की थी कि बहुत से हों और खूब मीठे हो। यहां पर मीठे होना चाहिए, खूब मीठे हों। खूब मीठे हों। आपकी पसंद और नापसंद मुझे नहीं मालूम, मगर आप जानते होंगे कि आम नापसंद करने वाले को गालिब गधे समझते थे। गालिब क्या समझते थे? गधे समझते थे। यानी कि जिसको आम पसंद नहीं है, जो आम को नापसंद करते हैं, गालिब के नजदीक वो गधे हैं। क्या हैं? गधे हैं। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन गालिब के आम पसंद नहीं होने पर जो है किसके नजदीक गधे हैं? आम पसंद नहीं करने वाले किस शायर के या किस शख्स के नजर में गधे हैं? तो इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो हीरो की पसंद इजहार करके मुझे उस वक्त आपकी शिनाख्त मंजूर नहीं। हीरो की पसंद का इजहार करके मुझे इस वक्त आपकी शिनाख्त मंजूर नहीं। कहते खट्टे मीठे आम की तरह हीरो, यहां पर हीरो भी खालिसन दो होते हैं। कहा कि खट्टे मीठे आम की तरह भी खालिसन
हीरो जो है दो तरह के होते हैं, दो होते हैं, मिसाली हीरो और मौसमी हीरो। मिसाली हीरो और मौसमी हीरो, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि हीरो कितने तरह के होते हैं, तो यहां पर आप दीजिएगा मिसाली हीरो, मौसमी हीरो, यानी कि हीरो दो तरह के होते हैं। उसे अपने मुल्क की खुशकिस्मती कहिए कि हमारे फलों में जितनी शक्ल स्वाद के आम मिलते हैं उतनी अक़साम के हीरो भी। कहा कि मोहम्मद हसनैन साहब ने कहे कि जितने तरह के हमारे यहाँ आम मिलते हैं, जितने अक़साम के हमारे यहाँ आम मिलते हैं, उतने ही तरह के क्या होते हैं, हीरो होते हैं। उतने ही तरह के क्या होते हैं, हीरो होते हैं। हाँ, हीरो होते हैं। हीरो मिसाल के तौर पर फिल्मी हीरो, कौमी हीरो, क्लास का हीरो, बाजार का हीरो, मोहल्ला का हीरो, बेंच का हीरो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है क्या है कि हीरो के बारे में जो है मोहम्मद हसनैन साहब ने बताया कि जो है जितने तरह के जो है हमारे यहाँ आम पाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा क्या है कि हमारे यहाँ हीरो पाए जाते हैं। फिल्मी हीरो होते हैं, कौमी हीरो होते हैं, क्लास का हीरो होता है, बाजार का हीरो होता है, मोहल्ला का हीरो होता है, गली कूचे का हीरो होता है, बेंच का हीरो होता है। यह हीरो किसी जगह अदाकारी करता है, यह हीरो किसी जगह अदाकारी करता है, कहीं सौदाबाजी करता है, कहीं यह कॉमरेड कहलाता है, कहीं रंगदार कहलाता है, कहीं सरदारी कहलाता है, कहीं सवारी, कहीं उसका शुगल पहलवानी होता है, कहीं आशिकी। यानी कि ये हम सुनते आए हैं कि ये आशिकी का हीरो है, इसका भूत उतारो। ये कहीं जो है ये सरदारी नजर करते आ रहे हैं। फिल्मों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हफ्ता वसूली करता है ये वहां का हीरो होता है, दादा कहलाता है। तो इस तरह के जो है हम लोग आए दिन इसके बारे में सुनते रहते हैं। तो मोहम्मद हसनैन साहब ने खूब ही बढ़िया इसमें जो है अपना इंशाइया लिखे हैं। तो यहाँ से काफी सवालात बनने के जो है चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिए और जो है कॉपी पेन में जो है इसका नोट भी करते चलिए। फिर इंशाल्लाह इसका जो है हम इसका एक नोट बना करके इसको जो है शेयर किया जाएगा, पीडीएफ शेयर किया जाएगा। जो वहां हाँ, तो आशिकी जहां जिंदगी की अलामत है वहां हीरोइज्म की अलामत है। जहां जिंदगी का सोज साज है वहां हीरोइज्म की तबोताब। कोई जगह हीरो से खाली नहीं, हर दिल में हीरोशिप का जज्बा और जो मौजूद है। यानी कि हर दिल में हीरोशिप रहता है, हर दिल में हीरोशिप रहता है। हर आदमी हीरो बनना चाहता है, हाँ, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, लेकिन हीरो बनना चाहता है। तो हीरो तबान दो होते हैं, मिसाली और मौसमी। अभी बता दिया गया। मिसाली हीरो वो किताबी दुनिया में नशो नुमा पाते हैं। मिसाली हीरो का यहाँ पर जो है मोहम्मद हसनैन साहब ने क्या मिसाली हीरो जो है क्या होते हैं, वो किताबी दुनिया में नशो नुमा पाते हैं, इसका डेफिनेशन दिया है। और अमूमन जायदा ख्याल होता है। नामी शेर और कहानीकार उसके खालिक होते हैं। उसके दम कदम में अहले कलम को मकाम अब्दी नसीब होता है। नैरंगी जमाना से मिसाली हीरो अगर कभी उस आलम रंग में नमूदार हो जाते हैं तो उसका कयाम और क़यादत मुआशरा के लिए पुर खतर हो जाती है। उसकी सरफराजियां उसकी हीरोइज्म नादिरुल वजूद बनाती है। उसके अक़वाल व अमाल जमीनी होती है। मरने के बाद उस हीरो की बुलंदी का अंदाजा होता है ना। मरने के बाद भी उस हीरो का नाम लिया जाता है। जिस तरह से हम अभी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के नाम लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कि भाई आजादी दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई, तो इसीलिए भाई हम उनका क्या लेते हैं, नाम लेते हैं। उसी तरह से मिसाली हीरो जो होता है वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ कर गुजरता है, करके जाता है। वो मरने के बाद भी उन दिलों में, किताबों में याद रहते हैं, जिससे इंसान उन्हें याद करता है। फिर इत्तबा व तौकीर के नाम पर उसकी कदर बेकदर की जाती है। यानी कि इत्तबा और तौकीर की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है। पैरा नमी मरीदान में पुर आनंद के मसादिक इस मर्द आहन के किरदार से ज्यादा उसकी जात के मरकज रुकू व सुजूद बना लिया जाता है। मिसाली हीरो अल्लाह का प्यारा हो जाते हैं और देखते ही उसके मुकल्लदीन व ताबईन खुराफात के जुल्मात में जर्रा नूर तलाश करते रहते हैं।
بعض مثالی ہیرو ویسے بھی ہوتے ہیں جو بے وقت یا قبل از وقت سفریہ عرض پر نمودار ہو جاتے ہیں، فکر و شعور کے عرفان کے ناہمی اور بلاخیر روشنی طبع کی وجہ سے خود آپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسے برگزیدہ ہیرو کو ارباب قضا و قدر جلد از جلد عالم ہستی سے عالم نیستی میں واپس کر دیتے ہیں، عالم نیستی سے واپس یہ ہو جاتا ہے۔ پھر مثالی ہیرو کا انجام خواہ یہ زاد قلم کے ہو پر دردہ قدرت عموماً المیہ ہوتا ہے، اپنی عالم ناکی کے باوجود یہ دست فنا سے محروم رہتا ہے۔ مثالی ہیرو کے المیہ کا یہی رخ طربناک اور درخشاں ہے، اس کے وجہ سے اس کی ہیروئزم کلاسیکی بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ کلاسیکی بن جاتی ہے۔ اصل جدید کا ہیرو کلاسیکی ہیرو سے زیادہ حوصلہ مند اور فعال ہوتا ہے، اس کے وجہ سے مزاج اور ماحول کا ہم رنگی ہے۔ لڑکپن سے پہلے اس میں عاشقی، مادہ اور جوانی سے پہلے حسینوں پر مرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ایجاب و قبول کے خاطر وہ ہمہ وقت آٹو رکشہ بنا رہتا ہے۔ اظہار عشق کا مرحلہ ہو یا ترسیل عشق کا مسالہ، وہ ہمیشہ ترقی پسندانہ انداز سے سوچتا ہے، غیر روایتی طریقہ کار کو اپناتا ہے۔ مثلا وہ پتنگ بازی یا غزل گوئی نہیں کرتا، وہ کبوتر یا ملازمت کا سہارا نہیں لیتا، وہ مٹھائی یا چٹھی کا بھی قائل نہیں ہوتا۔ رہی مصوری اور افسانہ نگاری تو ان وسائل کا استعمال اس کے لیے امر محال ہے کہ اب افسانہ اور تصویر پر دونوں تجریدی عاد ہو گئے ہیں۔ لازمن سرخ روئی یا زرد روئی کے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ آتش عشق میں بے خطر چھلانگ لگا دیتا ہے کہ میرے ساتھ فرما گئے، محبت نے ظلمت سے کارا ہے نور، محبت نے ظلمت سے کارا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ ہاں، یہ شعر بھی دے سکتا ہے اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے یہ کس صنف میں آیا ہے، یہ شعر جو ہے کس صنف میں استعمال کیا گیا ہے، کس نے استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اصل جدید کے ہیرو کے سفلا پن غصہ کی عوض مجھے ترس آتا ہے۔ آپ بھی میرے ہم خیال ہوں گے کہ اس کے ہیروئزم کی نامعقولیت دراصل ہمارے نظام تعلیم اور طریقہ تربیت کا ثمرہ ہے۔ غور فرمائیں اپنا مکتبی اور مذہبی تعلیم ہے اور نہ دنیا مشاہدہ میں وہ چمکدار اور رنگین تصویر میں داخل ہو جاتی ہے جو والدین کے ذوق اور کمروں کے زینت کا ثبوت رہتی ہے۔ بچہ کے تجسس پسند نظریں اور ان کا ماں پیکرے کے اڑیاں جسم کے جغرافیہ کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ گھر اور باہر بازار یا تقریب کی کوئی قید نہیں، مر مٹنے کی دعوت اسے ہر جگہ ملتی ہے۔ وہ جنسی کہانیاں دیکھتا ہے اور پڑھتا بہت کم ہے کہ دیکھنے سے ہی اسے فرصت نہیں ملتی۔ عمر آتے ہی کالج کے کھلی فضا میں اس کے ہیروئزم تازہ دم ہو جاتی ہے جو دل پر گزرتی ہے، جب حیوانی عمل سے اس کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت سے بد اقبال والدین اور نامراد اولاد بعد عفت بسیار ایک ہی گھاٹ پر جا لگتے ہیں، یعنی آپ کی ہمدردی ہائے دل اور ہائے گل دونوں کے لیے لب ہوتے ہیں۔ خدا بخشے لکھنؤ کے اگلے لوگ کیسے روشن دماغ اور دوربین تھے، ان کی نفاست پسندی اور جدت پرستی کے جواب نہیں۔ ادب اور تہذیب کو اس لکھنوی زندہ دلی سے کیا کچھ نہ ملا۔ لکھنؤ سے ریختہ کو ریختی ملا۔ کیسر باغ کو راجہ اندر کا دربار بنا کر، بلبل کو مذکر باندھ کر انہوں نے دلی والوں کو نئے مقامات آہو فغاں اور روشناس کرایا، اور تو اور نہایت دور افتادہ ماضی کے ایک تہذیبی مشغلہ کو انہوں نے اپنا لیا کہ نقل اصل سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ قدیم روم اور یونان کے جڑی سورماؤں کے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یہ خونخوار اور گرسنا درندوں سے کشتی لڑتے، پیترے بدل بدل کر اپنی شجاعت کے مظاہرے کرتے، حیات موت کی کشتی کے یہ روح فرسا تماشا رومی اور یونانی فرما رواں کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ آپ یہاں پر لکھ سکتے کیا تھا؟ مشغلہ تھا۔ اس گشتی سے جو بازی کا جائزہ
بھی था, मुजाहरा होता, पर साहब या मशगला किसी की जान गई. आज की अदाहरी वाला एक तरफा मामला था. आफरीन और अहले लखनऊ इस रोमी रवायात की लखनवी निदात ने पहुंच कुनी कर दी. उनकी तवज्जो से किश्ती की न सिर्फ बेहनियत दूर हुई बल्कि उसमें जिद्दत और नफासत भी आ गई. यानी एक तरफ उन्होंने इंसान दरिंदों के बजाय बैर और मुर्ग के कुश्ती राइज किए, दूसरी तरफ दो पहलवानों को अखाड़े में उतारने के एवज उन्होंने बैठे बैठे चोंच लड़ाने का हुनर सिखा दिया. कैसा कलब गदास पाया था उन्होंने. भला दरिंदा और दो पाया का मुकाबला क्या, हैवान उन दोनों में बड़े ठहरे. लखनऊ के अगलों ने मगर ऐसे सूरमा तैयार किए जो पहलवानों से बाके हो गए. ऐसे मस्त पहलवान जिनकी लंगोट उतर गई और मूछ उठ गई. उनका जिस्म पहलवानी ना रहा. फिर उनमें से किस बल आ गया. देखा आपने, लखनऊ के ये बाके भी दरअसल हीरो की एक किस्म है. यह बाके इस अहद के तहजीबी जाओ जमाल की मुजस्सिम तस्वीर है. उन बाकों के हीरोइज्म से मजमा और मजलिस में बाद निशात बाने लगती है और बुझे दिल भी खुल जाते हैं. कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन दो बाके बगैर सफर यके बाद दीगरे एक ही डब्बे में दाखिल हुए. उनकी नजरें मिली. जो बैठ चुका था जम कर बैठ गया. जो आया वो वापस न हुआ कि बांकपन दोनों के को अजीज था. ट्रेन रवाना हुई. मुसाफिर खुश हुए कि उन बांकों की आमद से खुशी वक्त नसीब हुई. जानों पर जाने रखे आमने सामने सीट पर बातनाम बैठे दोनों बाकों ने अपने लंतराने शुरू कर दी. मुसाफिरों को अपने शेर सवार से फरीफता व मतवज्जा करते हुए या अपने मुरब्बी के बेमतल एजाज व उपकार पर दून की हाँकने लगे. उनके मुकाल में नाले पे दहले के बाजी खेलने लगी. फिर निचला कोई नहीं बैठा. कुछ देर बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी. इत्तफाक वक्त दोनों बाकों को उसी जगह पर उतरना था. अपनी मरसा छड़ी लिए ये प्लेटफॉर्म पर आ गए. इधर उधर कुली घूम रहे थे कि बाके ने तिल्लेदार आवाज से कुली को पुकारा. दूसरे बाके ने दसदीदा निगाहों से उसकी जानिब देखा. सामान नदारद. फिर कुलीचे मानी वह न देखे अंदाज से बाके का जायजा लेने लगा. पहले बाके ने नया तमकीनत से साथ कुली की तरफ अपनी छड़ी बढ़ाई और कहा, देखता क्या है, ले ये छड़ी उठा. बांकपन का यह मुजाहरा दूसरे को जक दे गया. दिल ही दिल में वो तिलमिला गया जैसे उसको कोई कोर दब गया हो, उसकी कोर दब गई हो. अचानक छठे हिस्स ने उसे सहारा दिया. उसने भी कुली सदा लगाई. एक कुली दौड़ कर आया. पास आकर बोला, नवाब साहब सामान कहाँ है? आकर के नवाब साहब, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि पहला कुली ने क्या उठाने के लिए दिया. पहला बांकपन ने जो है कुली को क्या उठाने के लिए कहा. तो ये सवाल पूछते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्या जो है. हाँ, तो उन्होंने जो है क्या उठाने के लिए दिया, छड़ी उठाने के लिए. अचानक छठे हिस्से ने पहले बांके ने नया तमकीनत के साथ कुली की तरफ अपनी छड़ी बढ़ाई. देखिए क्या है कि पहले बांके ने नया तमकीनत के साथ कुली की तरफ छड़ी बढ़ाई और कहा, देखता क्या है, ले ये छड़ी उठा. बांकपन का यह मुजाहरा दूसरे को जग दे गया. दूसरे को जो दूसरा जो है बांकपन था, बांका था, जो उसको क्या कर दिया, जग दे गया. तो वो तिलमिला उठा. तो उन्होंने भी बाद में कुली चिल्लाया और एक कुली आया और कहा कि भाई सामान कहाँ है. बांके ने कामदार सदरी की जेब से नियात फखर से दो अंगूठे लब्दाखुल की दो अंगुली दाखिल की. टिकट निकालते हुए कुली को हुक्म दिया, नवाब के बच्चे
नवाब के बच्चे ये टिकट उठा, नवाब के बच्चे ये टिकट उठा, ये तो दूसरे ये बात दूसरे बाका ने क्या कहा, बात कही। तो आज के हीरो वो बाका सजीला नहीं होता, उसको हीरोइज्म को देखने या सुनने का जी भी नहीं चाहता, ना मिसाली हीरो और ना किताबी। यह फसली होता है और मौसम तो लद होता है। मैं यह मुशाहिदा न कर सका कि मौसमी हीरो की क्या अच्छी फसल मुनासिब फजा का नतीजा होती है या नामुनासिब फजा में इसकी फसल लाला होती है, पर इतना वो से कह सकते हैं कि असरी बहरान और इंतशार मौसमी हीरो की नशोनुमा के लिए निहायत साजगार है। मामला तौलीद में उनकी आमद आवरद का गोशवारा बनाना अच्छे दानिशवरों के लिए भी मुश्किल है। मौसमी हीरो खड़े स्टीम इंजन के भभकते धुएं, मौसमी हीरो खड़े स्टीम इंजन के भभकते धुओं की तरह अचानक उभरता है। देखिए यहाँ पर एक ये कहा कि मौसमी हीरो खड़े स्टीम इंजन के भभकते धुओं की तरह अचानक उभरता है। उसकी हीरोइज्म की कारनामों से शरफा घर के अंदर और सफला घर के बाहर जाते ही वजह है कि उसे बड़ा दर्द सर अक्सरियत की हमायत हासिल हो जाती है। बाबनाथ होने से पहले वह यूं अटने लगता है जैसे नया मुलाजिम नया बुश शर्ट पहनकर मलिकिनी के साथ बाजार को निकला हो। मौसमी हीरो कद्दू करेले लतों के मानंद तेजी से बढ़ता है, ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रहता। कामड़ियां 70 हो या सैकड़ों, ये जल्द अपने रंग बदल देता है। तौबा इस्तगफार करके यह ज़ियारत को निकल जाता है। वापसी के बाद फिर यह शराई हीरो बन जाता है। फितना और फतूर की दुनिया से मुंह मोड़कर वो खैर व खिदमत की दुनिया में दाखिल हो जाता है। रवायती रसूम के अजर और चलते फिरते अकायद के रास्ते पर शराई हीरो का यकीन निहायत कामिल और पुख्ता होता है। मोहल्ला या बरादरी के उन रोशन ख्यालात तलबा की अकल पर वह दस्त तासुफ मिला करता है। जो कारखाना कुदरत को अंधे की लाठी तस्वुर करते हैं, यह नौ उम्र दानिशदर असल निहायत हसास होते हैं। उम्मत मोहम्मदिया का जवाल व अदबार और आमा हाय मौसी वैटी की जफर अकबाल का राज उनकी कच्ची फिक्र व फहम आफाक पुरअज़ फितना व शर है, पर उसे यकीन होता है कि क़यामत करीब है। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, क़यामत करीब है, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, सब ठीक रहेगा। या ईमान परवर और ईमान सोज तकाबुल बहुत बड़ी दिलचस्पी होती है। मुदाखलत के बगैर उस मकाती मनाजिरे से लुत्फ अंदोज होने का मुझे मौका मिला है। ऐसा महसूस हुआ जैसे मन्ना डे इकबाल का शिकवा और मोहम्मद रफी जवाब शिकवा खुद रफ्ता होकर सुना रहे हो। और इंशाइया में बुनियादी फर्क को देख लेते हैं कि इसमें बुनियादी फर्क क्या क्या हैं। तो आप किसी भी तरह का मुक़र्रर ज़ाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। उसमें देखते हैं कि मजमून और इंशाइया में बुनियादी फर्क दर्ज झेल निकात से वाज़ेह होता है। उसलूब स्टाइल, मजमून आम तौर पर मालूमाती तज्जियाती दलील पर मबनी होता है। अंदाज ज्यादातर सादा और साफ गो होता है। मकसद कारी को कोई मौजू समझाना होता है। हाँ, तो मजमून क्या, इसका उसलूब जो स्टाइल होता है, इसका स्टाइल जो होता है, इसका स्टाइल क्या होता है कि जो इसका
इसका स्टाइल, मजमून का जो स्टाइल होता है वो आम तौर पर मालूमाती होता है, तजजियाती होता है, दलील पर मबनी होता है। अंदाज ज्यादातर सादा और साफ गो होता है, मकसद कारी को कोई मौजूद समझाना होता है। यह हो गया मजमून का डेफिनेशन। और इंशाइया का डेफिनेशन देख लेते हैं। इंशाइया क्या है? इंशाइया जो इसलूब अदबी, जज्बाती, अलामती, फन्नी होता है। मुसन्निफ अपने ख्यालात को खूबसूरती और दिलकशी से पेश करता है। जैसा कि आपने अभी महमूद हसनैन का जो है इंसाइया हीरो के बारे में पढ़ा कि उसमें फनी एतबार से भी काफी गहराई है और अदबी भी है, जज्बाती भी है, अलामती भी है। तो ये सारे जो है और खूबसूरती के साथ इसको लिखा जाता है। दूसरे स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। दूसरा स्लाइड में देखिए कि मवाद की नोयत, क्या मवाद की नोयत, नेचर ऑफ कंटेंट। मजमून मौजुआती तहकीकी हकायक पर मबनी होता है, जैसे माहौलियाती आलूदगी, तालीम की अहमियत। ये क्या है कि ये मजमून है। इंसाइया क्या होता है? इंसाइया जाती अखलाकी तासुरात, मुशाहिदात का इजहार होता है, जैसे बारिश का दिन, तन्हाई का जो है हुस्न। ये क्या है? ये इसके एग्जाम्पल हैं कि मजमून मौजुआती तहकीकी हकायक पर मबनी होता है, जैसे माहौलियाती आलूदगी, तालीम की अहमियत, साइंस के जो है फायदे और नुकसान। ये जिसमें जो है हकायक पर ये हो और तहकीकी से जो है काफी लैस हो। तो इंशाइया क्या कहलाता है कि जाती ख्यालात, तासुरात और मुशाहिदात का इजहार होता है, जैसे बारिश का दिन, तन्हाई का हुस्न वगैरह सब। चलिए चौथे स्लाइड पर देखते हैं कि जो है क्या है आगे का स्लाइड में। मकसद, पर्पस। मजमून जो होता है वो कारी को किसी भी मौजू को वजाहत और तफसील फराहम करता है। कारी को किसी मौजू की वजाहत और तफसील फराहम करता है। इंशाइया कारी को जमालियाती लुत्फ देता, सोचने पर मजबूर करना या मुसन्निफ के जज्बात से जोड़ना। यानी कि मुसन्निफ अपने जो जज्बात उसमें जो डाले हैं इंशाइया में, उसे जोड़ लेना और जमालियाती लुत्फ देना, सोचने पर मजबूर कर देना। चलते हैं साख्त, स्ट्रक्चर। मजमून तारुफ, जिस्म, नतीजा मुनज़म अंदाज में होता है। इंशाइया का तो साख्त सख्त नहीं होती, आजाद उसलूब में ख्यालात का बहाव नुमाया होता है। ये ख्यालात का बहाव नुमाया होता है। जबान क्या होता है? जबान मजमून का सादा, बराह रास्त और वाज़ेह होता है। इसका इंशाइया क्या होता है? अदबी होता है, तख़य्युलाती होता है, अक्सर अलामतों या तस्बीहों से मुज़य्यन होता है। तो इसको समझने में जो थोड़ा सा दिक्कत होता है, जो है क्या होता है? दिक्कत होता है। इसी के साथ हम अपना क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें फीडबैक दीजिए और जो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी और कभी जो है टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम बता सकते हैं। जो है अब हम इस क्लास से जो है फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज।